A very good morning to all my dear students. Today we are just going to do our another lesson from our literature portion, that is On the Face of It, which is written by Susan Hill. So this is the sixth chapter from our NCERT book. So here we come to know a story about a boy and an old man. They just form in the farmer's garden, and that particular old man strikes up a friendship with the boy, who is very withdrawn and defiant. So now in this we are going to find out that what is the bond that unites the two, because one person, that is the old one, and is in the old age, and another person who is the, or you can say the character is a young boy, and they got tied up in a friendship, and how it could be possible we will see it out through. So before telling all this text, I would like to tell you that this is a kind of drama, so in which three scenes are there. So this particular drama has been divided into three scenes, and particularly in this we have just two main characters. One is Mr. Lamb, another is Derry. So Mr. Lamb is an old man and a small boy whose name is Derry. Now both have some of the you can say faults in their body, and because of these they never ever meet the people, and they never feel comfortable to meet the people. All these things happen to always them. So here is the scene one in front of us says, and Mr. Lamb's garden, that we in the first scene we come to know that Mr. Lamb has his own garden, and there is occasionally sound of bird song and of tree leaves rustling. यहाँ कभी कभी ऐसे साउंड्स होते हैं जैसे बर्ड्स सिंग करते हैं, ट्री लीव्स रसलिंग कर रही हैं, यानी कि फड़फड़ा से रही हैं. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grasses. He pauses, then walks on again. He comes round a screen of bushes, so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand. Derry is startled. It means this is the scene in which the young boy Derry just enter in the garden of Mr. Lamb, एंड हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम के गार्डन में ज़्यादातर कोई नहीं जाता, तो वहाँ काफ़ी शांति है. देयर इज़ अ पीस ऑल राउंड. सब डेरीज फुट स्टेप है वो क्लियरली हेयर सुन रहे हैं, यानी सुने जा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे और किसी चीज़ की कोई चहचहाहट है ही नहीं एक्सेप्ट द बर्ड सॉन्ग. सो वो उन लॉन्ग ग्रासेस में से चलता हुआ आ रहा है. सडनली वो मिस्टर लैम से उसको कौन दिखाई देता है? मिस्टर लैम दिखाई देते हैं. वो उनसे बात करता है, and then डेरी थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है. देन व्हाट द मिस्टर लैम सेज, लेट्स सी. मिस्टर लैम सेज, माइंड द एप्पल्स, उन एप्पल से बचो जो अभी राइप नहीं है, वो नीचे गिरी हुई है, इट विल हर्ट यू. डेरी, व्हाट, हुज देयर. वो थोड़ा हेजिटेटली पूछता है, क्या, कौन है यहाँ पे, किससे बचूं? मिस्टर लैम, लैम्स माई नेम, माई नेम इज लैम. नाउ और डेरी जैसे वो यहाँ सोचकर ये आया था कि यहाँ कोई नहीं है, तो वो मिस्टर लैम की आवाज़ सुन के कहता है कि कौन है यहाँ पे, किस, कोई है यहाँ पे? देन मिस्टर लैम कहता है, माई नेम इज़ लैम, मेरा नाम क्या है? लैम है. माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, वो अभी टूटी हुई एप्पल्स जो अभी गिरी हैं वो तुम्हें हार्ट कर सकते हो, तुम इन पर फिसल सकते हो. वाइन फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रासेस पर अभी गिरी हुई हैं, यू कुड ट्रिप, तुम इनमें फिसल सकते हो. Daddy, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. एक्चुअली वो हेजिटेट होकर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है, मुझे लगा यहाँ एक एम्प्टी जगह है, एक खाली जगह है, यहाँ कोई नहीं रहता. नाउ यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है. इट सेज, हु इज़ मिस्टर लैम एंड हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन. तो आपको इसका आंसर यहाँ मिल जाता है. मिस्टर लैम कौन है? द owner of that particular garden, and his name is Lamb. And how does the Derry get into his garden? He was just slowly and tentatively, just you can say increase his footsteps through the long grasses, and then he was just reached into the garden of Mr. Lamb. After that Mr. Lamb says, that's all right, I'm here. और कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ रहता हूँ. What are you afraid of, boy? तुम डरते किस चीज़ से हो? तुम इस तरह से क्यों आ रहे थे कि यहाँ कोई ना हो? That's all right.
सब ठीक तो है? डैडी आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस। वो कहता मुझे लग रहा था कि घर खाली है और खाली ही है। मिस्टर एम सो इट इज़, सो है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, मैं अपने घर से गार्डन की तरफ आया हूँ। इट्स एम्प्टी, तो वो तो एम्प्टी हो आई क्योंकि घर में तो कोई है ही नहीं। Until I go back inside, जब तक मैं उसके अंदर नहीं जाऊँगा तो घर भरा हुआ कैसे होगा, उसमें कोई कैसे होगा। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली स्टॉप, जब तक मैं यहाँ हूँ और हम यहाँ रुके हुए हैं तब तक घर के अंदर कोई भी नहीं है। तो तुम सही तो हो, वहाँ कोई भी नहीं है। ए डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे नॉट ए डे टू बी इंडोर्स, हम कभी इतने ब्यूटीफुल डे में अंदर कैसे रह सकते हैं। सो घर के अंदर कोई नहीं है बेटा। डैरी पैनिक, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, डर जाता है। आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। ना मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू माई गार्डन। तुम्हें मुझसे लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे गार्डन में आता है कौन नहीं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, जो गेट है वो हमेशा खुले रहते हैं। नो ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम हो जिसने गार्डन की वॉल जंप करके मेरे गार्डन में आए हो, अदरवाइज सबके लिए मेरे गेट जो है ओपन है। डैरी बड़े गुस्से से, यू आर वॉचिंग मी, ओके तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट्स ओपन, फिर भी गेट जो थे ओपन ही थे। ऑल वेलकम, सभी वेलकम है। यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आई सिट हियर, आई एम लाइक सिटिंग, और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे सिर्फ बैठना पसंद है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। सब मैं तुम्हें देख रहा था। डैडी आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ तुम्हारी कोई चीज़ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम नो नो, द यंग लैड स्टील, छोटे बच्चे चुराते हैं चीज़ें। स्क्रैम द एप्पल, जो एप्पल्स गिरे हुए तो उनको उठा ले जाते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने यंग नहीं हो कि तुम बच्चों जैसे हरकतें करोगे। डैडी आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं बस यहाँ आना चाहता था तुम्हारे गार्डन में। मिस्टर लैम सो यू डिड, तुम आ तो गए हो। हियर वी आर देन, और हम यहाँ हैं। डैडी यू डोंट नो हु आई एम, डैडी कहते तुम मुझे जानते ही नहीं मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम अ बॉय ऑफ 13 और सो। डैडी सडनली उसको बीच में टोक कर कहता है नहीं, आई एम 14, मैं 14 का हूँ। सो बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय, अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, मैं हूँ और मेरा गार्डन ही है। डैडी बट आई एम नॉट अफ्रेड, बट मैं नहीं डरता। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है। डैडी एवरी वन इज, चाहे कोई भी हो, आई इट डजेंट मैटर हु दे आर, कौन है, कितने ही बड़े इंसान हैं, और वट दे से और वट दे लुक, चाहे वो कैसे भी हो, कि कितनी बड़ी बातें करते हो, कैसे दिखते हो, चाहे कोई भी इंसान हो। हाउ दे प्रिटेंड, चाहे वो कैसे भी अपने आप को शो करते हैं। आई नो, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि वो मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम सी वॉट, तुम क्या देख सकते हो। डैडी व्हाट दे थिंक, कि वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम व्हाट डू दे थिंक देन, वो क्या सोचते हैं तुम्हें कैसे पता। डैडी यू थिंक, तुम्हें पता है। हियर इज़ अ बॉय, यहाँ जो लड़का खड़ा है, यू लुक एट मी, तुम मुझे देख रहे हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, तुमने मेरे फेस को देखा और तुमने सोचा दैट्स बैड, कितना बुरा है इसका चेहरा, कितना टेरिबल है। दैट इज़ द अगलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, तुम कह रहे होगे मैंने इससे भद्दी चीज़ कभी देखी ही नहीं। यू थिंक द पुअर बॉय बट आई एम नॉट, तुम कह रहे होगे कि तो कितना बेचारा सा लड़का है, बट मैं नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, तुम अंदर ही अंदर क्या हो, अफ्रेड हो रहे हो, डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, आई एम, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड से इट आई एम अफ्रेड ऑफ इट, तुम ही क्यों, मैं खुद डर जाता हूँ जब मैं खुद अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ। द मिस्टर लैम नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू डैरी, यस। मिस्टर लैम कहता है मुझे तो तुमसे कोई डर नहीं लगता। डैरी कहता है यस, तुम्हें लगता है। Now, Mr. Lamb, later on, when it's bit cooler, I'll get the ladder and a stake and pull those crabs apple. They're ripe for it. I'll make jelly. And it's a good time for years. September, look at then, orange and golden. That's the magic fruit I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hint. Now, Mr. Lamb कहता है कि अभी, यानी कि वो बात को बदल देता है और कहता है कि जैसे ही थोड़ी सी ठंडक बढ़ेगी, मैं एक लेडर लेकर आऊँगा, एक स्टिक लेकर आऊँगा, और इन सारी क्रैब्स एप्पल को जो राइप हो जाएंगे तब तक सारे को उतार दूँगा, उनकी जेली बना दूँगा, क्योंकि सितंबर का मंथ है, इनमें सबसे बेस्ट जेली बनती है। और ऑरेंजेस को देखिए वो कितने गोल्डन हो चुके हैं, ये बिल्कुल बहुत शानदार फ्रूट है, और मैं इनके जनरली जेली बना देता हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। अब डैरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर,
तुमने जो टॉपिक था मेरे चेहरे वाला वो क्यों चेंज किया? तुम क्यों अपने जेल के बारे में बात करने लगे? पीपल ऑलवेज डू दैट, पीपल भी तुम्हारी तरह ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछ ही क्यों नहीं लेते कि तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट्स नॉट ट्रू एंड इजंट देयर, तुम दूसरों की तरह क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, इन केस आई सी यू, जब मैं तुम्हें देखता हूँ या फिर मैं कोई भी मुझे देखे या मुझे अपसेट हो, वट कैन आई डू? आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम मुझसे डर रहे हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो बताओ क्या बात है, क्या कैसे तुम्हारा चेहरा चला? डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, मुझे किसी भी आदमी या फिर किसी भी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं, किसी भी इंसान के साथ। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन ए फायर, अगर मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखती तो मैं शायद यही कहता कि तुम्हारा चेहरा किसी फायर से बर्न हुआ है, जो आग से जला है। डैडी, नॉट इट्स नॉट अ फायर, नहीं आग से नहीं जला। आई गुड एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे इस साइड फेस जहाँ जला हुआ है उसमें एसिड गिर गया था और ये सब कुछ बंद कर गया। इट एट माई फेस, इसने मेरे फेस को भी खा लिया। इट एट मी अप, इसने मेरे अस्तित्व को ही खा लिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वुड नॉट एवर बी एनी डिफरेंट, अब कभी भी ये मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं हो पाएगा। मिस्टर लैम, नो, ऐसा तो नहीं है। डैडी, आरंट यू इंटरेस्टेड, वो कहते तुम ये बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते? मिस्टर लैम, यू आर ए बॉय हु कैन केम इन टू माई गार्डन, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आया। प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, बहुत सारे आते हैं तो मैं हर एक में इंटरेस्ट रखता हूँ, एनीथिंग, कुछ भी हो। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान ने बनाया हो और जो मुझे इंटरेस्ट में ना आया हो। लुक ओवर देयर, तुम यहाँ वहाँ देखो, बिसाइड द फार वॉल वट यू कैन सी, तुम उस दीवार के पास देखो और देख कर बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है? डैडी, रबिश, वहाँ तो सिर्फ खरपतवार है और कबाड़ा है। मिस्टर लैम, रबिश, कबाड़ा? लुक बॉय, लुक, व्हाट डू यू सी, देखो, आराम से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है बॉय। डैडी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स, वो कहता है वहाँ सिर्फ घास है, थोड़ा स्टफ है और खरपतवार है, यानी कि एक्स्ट्रा वीड है। मिस्टर लैम, वीड क्या होते हैं? वीड होते हैं वो प्लांट्स जिन्हें उखड़ कर फेंक दिया जाता है, जो किसी काम के नहीं होते। मिस्टर लैम, सम कॉल देम वीड्स, ओके, तुम उन्हें वीड्स बुला रहे हो, कुछ लोग उन्हें वीड्स ही बुलाते हैं। अगर तुम उन्हें पसंद करते हो देन ए वीड्स कैन बी गार्डन, तो अगर तुम उन्हें पसंद करते हुए होते तो तुम उन्हें वीड गार्डन बोलते। दैट्स द फ्रूट, देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स, ट्रीज एंड हर्ब्स हैं, ऑल सोर्ट्स, सभी टाइप के। बट ओवर देयर वीड्स, बट वहाँ वीड्स भी हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, मैंने वहाँ फल, ये वीड्स हैं, उगाए हैं। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड वीड एंड अदर कॉल्ड इज फ्लावर, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि एक प्लांट जो हरे रंग का है उसे फूल आ जाते हैं तो उसे हम फ्लावर बोलते हैं, और वैसा ही एक हरे कलर का प्लांट जिसे हम वीड बोलते हैं, वीड बोलते हैं। बल्कि बनाए तो दोनों ही भगवान नहीं है, दोनों के डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ रखते हैं। इट्स ऑल लाइफ, राइट, ये बिल्कुल लाइफ जैसा है जिसमें हमें सिर्फ उगना होता है, चाहे हमें कोई वीड बोले चाहे कोई हमें फ्लावर बोले, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, सेम एज यू एंड मी, तुम्हारी तरह और मेरी तरह। डैडी, वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। यू हैव ए बर्न फेस, आई हैव ए टिल लैग, तुम्हारे पास एक जला हुआ फेस है और मेरे पास एक टिन की लैग है। नॉट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो। आई एम सिटिंग हियर, तुम मैं यहाँ बैठा हूँ। व्हाट्स द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? नाउ डैडी कहता है यू हैव वाई यू हैव ए गोट टिल लैग, वो कहते हैं इसमें तुम्हारे पास जो टिल लैग है वो क्यों आई है? मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक, बहुत साल पहले मेरी जो एक टांग थी वो उड़ गई थी किसी हादसे में। सो लैमी लैम कहते हैं मुझे बच्चे, तुम्हें अभी तक सुना नहीं होगा, शायद तुमने सुना नहीं है तो तुम सुन लोगे, बट ये बात मुझे कोई ट्रबल नहीं करती है। डैडी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप, बट इसी अभी भी कंडीशन हमारी अलग अलग है कि तुम अपने टांग पे थोड़ा सा ट्राउज़र डाल सकते हो, कवर कर सकते हो, कोई नहीं देखेगा, कोई स्टेयर नहीं करेगा। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो इस चीज़ से उब चुके हैं। इन द एंड ऑलमोस्ट सभी ने देख चुके हैं मेरे पास किस चीज़ की टांग है, तो वो इस चीज़ से काफ़ी उब चुके हैं।
देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। अब मेरे पास बहुत और चीज़ें हैं जिसे वो घूर सकते हैं। अब डैरी कहता है लाइक माई फेस, वो कहता है कि शायद हाँ सही कह रहे हो, मेरे फेस को घूरते रहते हैं लोग। मिस्टर लैम, अरे मैं तुम्हारे फेस की बात नहीं कर रहा। लाइक क्रैब्स, उन क्रैब्स एप्पल को देख सकते हैं, वीड्स को देख सकते हैं, स्पाइडर जो उन पे चढ़ रही है वो उसको देख सकते हैं, सिल्कन लेडर को देख सकते हैं, और मेरे टॉल सनफ्लावर्स को भी देख सकते हैं। नाउ डैरी कहता है थिंग्स, ये सारी चीज़ें तो चीज़ें हैं, वस्तु हैं। तो मिस्टर लैम कहता है इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरह हैं। व्हाट वाज दैट सपोज टू मीन? डैरी, अब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम बताओ। डैरी, यू नीड नॉट थिंक दैट दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझे कभी कोई फेरी स्टोरी नहीं सुनाई है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और तुम्हें इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक एज व्हाट यू आर इनसाइड। ऐसा नहीं लगता जो तुम बाहर से हो वो तुम अंदर से भी हो। बिकॉज हैंडसम इज़ अ पर्सन हैंडसम डज। एक आदमी अच्छा तभी कहलाता जब वो अच्छा काम करता है। अब जो ब्यूटी एंड बीस्ट है ये कहानी है, एक फेरी टेल है। इसमें ब्यूटी जो है वो एक लड़की होती है, जो बीस्ट होता है वो एक मॉन्स्टर्स टाइप एक प्राणी होता है। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नाउ जो ब्यूटी है वो उसको किस करती है, वो उसको हैंडसम प्रिंस में चेंज कर देती है, उसका प्यार उसको चेंज कर देता है। ओनली ही वुडंट। अब जो डैरी है वो कहता है सिर्फ वही चेंज हुआ था, कोई मैं इन सब चीज़ों से चेंज नहीं हो सकता। मिस्टर लैम, इन वट वे नो यू वुडंट। अब मिस्टर लैम कहता है हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता। डैरी कहता है and no one will kiss me ever, only my mother, and she kissed me on the other side of my face and I don't like my mother to kiss me and she does it because she has to। अब वो ऐसा करती है, मेरी माँ ही है जो मुझे किस करती है, वो भी मुझे उस साइड फेस के उस साइड पे किस करती है जहाँ मेरा वो बर्नट आउट नहीं है, और उन्हें भी किस करना पड़ता था कि मुझे ऑफेंड फील ना हो। तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे किस करे ना। मिस्टर लैम कहता ओ बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। हाँ तुम्हें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम उन्हें किस ना कर पाओ। डैरी, व्हाट, किन्हें? मिस्टर लैम कहता है गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आइज, पीपल यू लव। मान लो तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, लंबे बाल हों, सुंदर आँखें, तो तुम उन्हें किस नहीं करोगे? डैरी, हु लेट मी डू, नॉट वन, एक भी मुझे प्यार करने नहीं देगा, कोई किस करने नहीं देगा। मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, ये बात तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें ये बात बताता कौन है ऐसे? डैरी, आई वुडंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, आई लुक द सेम, आई विल स्टिल ओनली हाफ अ फेस। अब मैं जब तुम्हारे जितना हो जाऊंगा तब भी मैं वैसे के वैसे ही रहूँगा, मेरा आधा चेहरे के साथ। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, ये तुम सोचते हो, बट द वर्ल्ड वुड नॉट, ऐसा वर्ल्ड नहीं सोचता। वर्ल्ड गोट अ फुल होल फेस, उनको तुम्हारा पूरा चेहरा दिखाई देता है, एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, और वैसे ही तुम्हें दुनिया देखेगी। नाउ डैरी सेज डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, तुम्हें लगता है कि ये दुनिया है, ये छोटा सा गार्डन ये तुम्हारी दुनिया है? मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, सिर्फ यही नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, मैं हाँ जब हमेशा तो नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे लिए यही मेरी दुनिया होती है। नाउ डैरी कहते हैं डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी जो लेग है वो तुम्हें अभी भी दुख मतलब आई मीन पेन करती है? मिस्टर लैम, टिन तो हर्ट नहीं करता है बच्चे। अब तो डैरी इससे आगे पूछता है व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, जब ये तुम्हारी लेग उड़ी तब कब तब तो हुआ होगा दर्द? मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, तब तो हुआ ही होगा, तब तो बहुत हुआ था। तो डैरी कहता है एंड नाउ, अब नहीं होता, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप एट द टॉप, मतलब जहाँ ये टिन रुकती है तो तुम्हारी थाइज में वो चीज़ लगती नहीं है? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर डजंट सिग्निफाई, वो कहता है शायद वेट वेदर में ये चीज़ ज़्यादा चुभती है, आज हो चाहे कल हो, बट ये किसको फ़र्क पड़ता है? किसी को नहीं। डैरी, ओ देयर समथिंग एल्स दे ऑल से, कुछ लोग हैं कुछ कहते हैं ऐसे, लुक ऑल दिस पीपल, लेकिन तुम्हें उन लोगों को देखना चाहिए जो इससे ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन वो कभी क्राई नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते, एंड वो अपने लिए कभी सॉरी फील भी नहीं करते। मिस्टर लैम कहता है आई हैवंट सेड दैट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेरा दर्द मेरा है, उनका दर्द उनका है,
अब डैरी है वो कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्ड्स ऑफ देन यू, तुम उनके बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरी हालत में हैं। तुम सोचो अगर तुम उस टाइम में ब्लाइंड हो जाते, डेफ हो जाते, व्हील चेयर पर बैठ जाते और तुम्हारा हेड जो है वो किसी भी तरीके से टकरा जाता तो तुम क्या करते। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट, जब तुम्हें सच्चाई पता है कि यस ये सब सच है। देन डैरी कहता है इट वुडंट मेक माई फेस चेंज, तब भी मुझे पता है तब भी मेरा फेस जो है वो चेंज नहीं होगा। डू यू नो वन डे वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज at the bus stop and she was with another woman. She looked at me and she said, whispered, only I heard her. She said, look at that, that's a terrible thing, that's the face only a mother could love. अब वो कहती हैं कि वो कहता है कि मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज़, यानी कि 2 लेडीज़ ऐसी थी जो कहाँ खड़ी थी, बस स्टैंड पे खड़ी थी और वो मेरे बारे में बात कर रही थी। वो मेरे फेस को देखकर ये कह रही थी कि देखिए कितना बुरा चेहरा है इसका, कितनी बुरी तरीके से जला हुआ है, ये सबसे भयानक चीज़ है जो हमने आज तक देखी है, इस चेहरे को सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है। नाउ मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें हर एक चीज़ जो तुम सुनते हो उसे बिलीव हो जाता है। डैरी इट्स वॉज क्रूअल, ये बहुत बुरा था मेरे साथ। मिस्टर लैम मे बी नॉट मीन सच एज, वो कहते हैं शायद उसका मतलब वो ना हो जो तुम सोच रहे हो। ना वो कहता है कि किसी ने सुना है, क्या पता वो कुछ और अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हो, राइट। नाउ डैरी कहता है ओनली आई हर्ड इट, मैंने सुना इसको, आज बहुत अच्छे से सुना मैंने इस बात को। नाउ मिस्टर लैम कहते हैं कि एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, कि यही वो बात है जो तुमने हमेशा से सुनी है अपनी लाइफ में। देन डैरी कहता ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मिस्टर लैम सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो तुम्हें अपने जो कान हैं उनको बंद कर देना चाहिए, ऐसी बकवास चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। ना डैरी कहता है यू आर पिक्यूलियर, तुम अजीब हो, तुम अजीब सी बातें कहते हो जो तुम क्वेश्चन करते हो, मुझे उनकी बात समझ नहीं आती है। ना मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, तुम्हें बात मेरी अजीब लगती है तो मैं तुम्हें बता दूँ मुझे सिर्फ बात करना पसंद है, कंपनी में रहना पसंद है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो डोर ओपन है। डैरी यस ओके, बट मैं इतना कहने से पहले ही मिस्टर लैम उसके बीच में बात काटते हैं और कहते हैं मेरे पास बीज हैं जो इस गार्डन में हैं, मधुमक्खियों का छत्ता है, कुछ लोग उन्हें बी बज़ कहते हैं, बट मैं तो उनके इस बी बज़ को हमेशा एक सॉन्ग की तरह सुनता हूँ। आई हियर दैम सिंगिंग माई बीज, मैं उनको हमेशा अपनी मेरी बीज की तरह सुनता हूँ। डैरी कहते हैं बट आई लाइक इट हियर, बट मुझे अच्छा लगा यहाँ आना। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैं इस वॉल पे से देख रहा था तब मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। देन मिस्टर लैम कहता है अगर तुम मुझे देख लेते तो शायद तुम अंदर नहीं आते। डैरी कहते हैं नो ऐसा तो नहीं है। मिस्टर लैम उसको कहते हैं नो ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो लोगों से मिलना पसंद ही नहीं है। डैरी नाउ सेज इट वुड हैव बिन यू कैन से ड्रेस पासिंग, ये कोई ड्रेस पासिंग नहीं है। ड्रेस पासिंग का मतलब होता है जब हम किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाज़त के घुस जाते हैं। देन मिस्टर लैम दैट्स नॉट वाई, वो ये बात नहीं कर रहा। डैरी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब वो मुझसे मैं खुद को देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम यू कुड लॉक अप योर सेल्फ इन रूम, नेवर लीव इट, देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट, ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग। तो तुम भी उससे एक आदमी की तरह अपने आप को एक रूम में लॉक क्यों नहीं कर लेते हो, वो जो हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर एक चीज़ से वो डरता था। अब बस माइट रन ओवर हिम, उसको डर था कि कहीं कोई अगर वो बाहर जाएगा तो एक बस जो है उसके ऊपर से चली जाएगी, या फिर कोई एक अगर वो बाहर जाता है तो कोई इंसान उस पर डेडली जम्प्स फेंक देगा यानी छींक देगा, या फिर डोंकी जो उसको लात मार देगा, किक कर देगा और वो मर जाएगा। एंड द लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर बिजली ही उसके ऊपर गिर जाएगी। या फिर उसका ये भी डर था कि कहीं कोई लड़की से वो प्यार करे और लड़की उसको चीट करे या फिर लीव यानी छोड़ के चले जाए, तो उस टाइम पे वो सहन नहीं कर पाएगा। और उसके बाद उसको ये भी डर था कि कहीं कोई बनाना स्किन होगी यानी कि कोई
बनाना की पील होगा तो उस पर वो फिसल जाएगा और उसका हेड कहीं लगेगा और वो मर जाएगा। तो उसको इस तरीके के डर थे, तो इसलिए वो घर से कभी बाहर निकलता ही नहीं था, वो हमेशा अंदर रहता था। ये बात सुन के डैरी कहते हैं फॉरएवर, क्या हमेशा के लिए अंदर रहता था? मिस्टर लैम फॉर ए वाइल, थोड़े दिनों के लिए ही रहा। मिस्टर डैरी पूछता देन व्हाट, तो फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं मिस्टर लैम अ पिक्चर फॉल ऑन द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब लेकिन आयरनी ये हुई कि वो जिससे उसे डरता था वो उसके पास ही थी। एक पिक्चर जो वॉल पे टंगी हुई थी वो उसके सिर पे गिरती है और वो मर जाता है। इस बात को सुनकर डैरी बहुत हंसता है। मिस्टर लैम कहते हैं यू सी, तुमने देखा? तो डैरी कहते हैं बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग, तुम अजीब सी बातें करते हो अभी भी। मिस्टर लैम पिक्यूलियर टू सम, शायद ये अजीब किसी किसी के लिए हैं। डैरी व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम क्या करते हो पूरे दिन? मिस्टर लैम सिट इन द सन रीड बुक्स, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट वॉज फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल। वो कहते हैं शायद तुम्हें लगता है कि अंदर से रूम है वो खाली है, बट मैं हमेशा सन की यानी कि किरणों में बैठता हूँ, धूप में बैठता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और अंदर से मेरा घर पूरी तरह से भरा हुआ है। डैरी बट देर आरंट एनी कर्टेन एट द विंडो नाउ। डैरी कहते तुम्हारे विंडोज़ पे हमेशा खुली रहती हैं और उस पर कोई कर्टन भी नहीं है, क्यों? मिस्टर लैम आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे कोई शौक नहीं है कर्टन्स का। शटिंग थिंग्स आउट, मैं बाहरी चीज़ों को अंदर, अंदर की चीज़ों को बाहर कैसे रोक सकता हूँ? बिकॉज आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट पसंद है तो दिन की लाइट वो अंदर आती है। एंड द डार्कनेस, मुझे डार्कनेस भी उतनी ही पसंद है जो भगवान की दी हुई है। एंड द विंडो ऑल्सो ओपन टू हियर द वाइंड, मैं विंडोज़ को ओपन इसलिए रखता हूँ ताकि मैं उस हवा की आवाज़ सुन सकूँ। डैरी येस आई लाइक दैट व्हेन इट इज़ रेनिंग, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है जो वो मेरी छत पे गिरती है ना। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर यू, शायद अब तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि तुम अब इतनी चीज़ों से नफरत करते हो। नॉट ऑल टुगेदर कि सभी से ही। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, तुम चीज़ों को सुनते हो और देखते हो। डैरी कहते हैं दे टॉक अबाउट मी, दे मीन्स यहाँ इनके पेरेंट्स और कुछ इंसान हैं जो इसकी लाइफ में जैसे बातें करते हैं। डाउन स्टेयर्स स्पेशली यहाँ पेरेंट्स के बारे में बात की गई, तो कहता है कि डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे जब मैं देखता हूँ, छुप आगे सुनता हूँ, तो वो हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं वट विल ही एवर डू, वो आगे जाके क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम जा चुके होंगे यहाँ से तो उसके साथ क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड और ऑन इन दिस वर्ल्ड, तो वो इस वर्ल्ड में किस तरीके से रह पाएगा हमारे जाने के बाद। लुकिंग लाइक दैट, वो इस तरीके से दिखते हुए बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। विद दैट ऑन हिज फेस, जो उसके फेस पर जले हुए का निशान है उसके साथ वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई दे से, इसलिए वो दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वो ये सब कहते रहते हैं। मिस्टर लैम लॉर्ड, हे भगवान, बच्चे तुम्हारे पास दो हाथ हैं, दो लेग हैं यानी दो टांगे हैं, आइज़ हैं, कान हैं, तुम्हारे पास जीभ है, सोचने के लिए ब्रेन है। यू कैन गो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, तुम हर चीज़ कर सकते हो लाइक ऑल द रेस्ट, सभी की तरह। एंड इफ़ यू चूज़ एंड सेट योर माइंड यू कैन डू बेटर दैन द अदर्स, सो तुम चाहो तो किसी को भी किसी से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हो। डैरी कहता है हाउ, कैसे? मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू, ठीक वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। डैरी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डैरी उनसे पूछे तुम्हारा कोई दोस्त है? मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, बहुत सारे हैं। डैरी बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, ये बहुत बड़ा हाउस है लेकिन तुम इसमें अकेले ही रहते हो। मिस्टर लैम फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह मेरे फ्रेंड्स हैं। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है, लोग आते हैं। जो गेट है वो हमेशा ओपन रहते हैं। दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर। किड्स कम फॉर द एप्पल एंड पियर एंड फॉर टॉफ़ी आई मेक टॉफ़ी विद हनी। एनीबडी कम्स, सो हैव यू। तो वो कहते हैं मिस्टर लैम कि जब भी सर्दी होती है तो लोग यहाँ आते हैं और सर्दियों के बाद भी और आगे पीछे हर मौसम में यहाँ आते हैं, क्योंकि मेरे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं और लोगों को यू कैन से मैं टॉफ़ीज़ देता हूँ बच्चों को, हनी से बनाई हुई जो ऑलरेडी मैं बनाता हूँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आते जाते रहते हैं। डैरी बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, मैं तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं हूँ। मिस्टर लैम सर्टेनली यू आर, तुम हो। ये मैं कौन कहता है? मिस्टर लैम कहते हैं सो फॉर एज आई एम कंसर्न, जितना मुझे पता है, वट यू हैव डन टू मेक मी दैट यू आर नॉट, मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया नहीं तुमने कि तुम यानी तुमने ऐसी कोई हरकत ही नहीं की जिससे मैं तुम्हें अपना दोस्त ना मानूँ।
देन डैडी कहता है आई सपोज नॉट टू, सॉरी डैडी कहता है यू डो नॉट नो मी, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम एंड नॉट इवन माई नेम वट माई नेम इज़। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। डैडी मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, इसका क्या महत्व है। डू आई हैव टू राइट ऑल दिस योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन द फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, क्या मुझे तुम्हारा दोस्त होने से पहले ही सारी चीज़ें लिख कर किसी ड्रॉर में लिख कर बॉक्स में रख के तुम्हारी पर्टिकुलर्स को रखना पड़ेगा। डैडी आई सपोज नॉट नो, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मुझे पता है ऐसा नहीं ज़रूरी कि नहीं है कि आप मेरी चीज़ों को लिखें या पता करें तभी हम दोस्त हों। देन मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़, अगर तुम्हें पसंद है देन यू कैन टेल मी योर नेम एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत बताओ। डैडी कहता है डेरी इज़ माई नेम ओनली इट्स डेरेक, डेरेक नेम है बट आई हेट दैट, बट मुझे डेरेक नाम से हेट है तो यू कैन कॉल मी डैरी, डैरी ही ठीक है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कॉल मी डैरी, आई चूज़ दैट, मैं हमेशा डैरी ही बुलाना पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम सर्टेनली ओके, निश्चित तौर पे मैं यही बुलाऊँगा। डैरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, क्या पता मैं यहाँ कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन देन आई कुड नॉट बी स्टिल ए फ्रेंड, क्या पता मैं यहाँ ना आऊँ उसके बाद हम कभी दोस्ती ना रहे। मिस्टर लैम वाई नॉट, क्यों नहीं आओगे। डैडी हाउ कुड आई, मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम, तुम तो हर किसी से भी बात कर लेते हो यहाँ से गुजरते हुए इंसानों से, बट यू नेवर सी दैम अगेन, तो ऐसे बहुत सारे इंसान जिसे तुम नहीं देख पाते, तो इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड, तो उनमें से मैं भी एक हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दोस्त ही हो गए हैं। मिस्टर लैम कहते हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज इधर डज इट, इसका मतलब ये भी तो नहीं कि वो मेरे दुश्मन है ना। तो डैडी कहते हैं नो दे आर जस्ट नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं है, पीपल वो सिर्फ इंसान है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, जो इंसान हो वो हमेशा नथिंग नहीं होते, कभी नहीं होते। डैडी कहते हैं देयर आर सम पीपल आई हेट, यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम दैट्स डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, देन ये जो तुम्हारे अंदर की नफरत तुम्हारे जो फेस पर पड़े हुए एसिड की बोतल है इससे ज़्यादा खतरनाक है। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड जो है वो तुम्हारे फेस को ही बर्न कर रहा है। डैरी ओनली, बस इतना ही, इसने तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। मिस्टर लैम लाइक ए बॉम्ब ओनली फ्यू माई you can say blew up my leg, there is a worse thing can happen, you can burn yourself away inside, तुम अपने आप को इससे ज़्यादा भी आगे झुलसा सकते हो इस चीज़ से। मेरे तो सिर्फ टांग उड़ाया गया है, बल्कि अगर उस बॉम्ब से भी खतरनाक तुम्हारे अंदर की हेटेड है। डैडी कहता है आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन द हॉस्पिटल, ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर लाइक हिमसेल्फ, शी थिंक्स blind people only ought to be with other blind people and idiot with the other idiot people। जब तुम्हें पता है जब मैं ऐसे चेहरे के साथ जब हॉस्पिटल से घर वापस आया था तो एक लेडी ने क्या कहा था, तो उसने कहा था कि शायद इसको वहीं हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ब्लाइंड लोग यानी अंधे लोगों के साथ ही रहेंगे और जो ऐसे इडियट पीपल हैं, इडियट बॉयज़ हैं, वो इडियट के साथ ही रहेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर जस्ट स्टॉपिंग हियर आउट टू द पॉइंट, here the diary's conversation, so we'll continue it with the next of the session, and we'll continue this chapter in the next part, so stay tuned with the next part. So today read it out to the whole from your you can say book Vistas. We'll meet in the next video. Thank you.